experiencing their performance. They are increasing their performance day by day, and I'm very happy. They are not only increasing their performance in physical, but also in academics and in their behavior. Wow. So that And means, moreover, they are becoming a good listener. wow. So that means when they're doing taekwondo, not just their uh, physically they are improving, but also their whole discipline and Yes. all aspects of the life. Yes. Wow, that's so good to hear. Now, the second question is to you. What is the biggest change you've noticed in your child since that started? Discipline Discipline. and strength, physical strength. Okay. Yeah. Wow. And how do you support your child when training gets difficult or when they don't get results they hope for? How do you support them? How do you Be cool, whether result positive or negative. Just do your efforts give your best? positively and give your best. Okay. My question to you is what's one lesson you have learned from your child through their taekwondo? Earlier stage, Mike was not that disciplined guy. But after going to Taekwondo and taking training from the coaches and the guidance from the principal and all that, he has improved a lot. So he has mentally developed, he has physically developed, and he is improving day by day. So there is a better change in him. So what have you learned as a parent? As a When parent, you look at your child improving and getting better at things, what is that learning which you have taken from it? we should be well organized, we should be very disciplined like them also, and we should follow the journey along with them. That's all. Tell us about your kids have gone at international level. How proud you are as a parents, and tell us about the hard work you have been for. क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने बच्चों के बारे में जिन्होंने बहुत मेहनत की और ये मेडल्स जीते हैं? जर्नी हम चाहते हैं कि आप बताएं, अपने बच्चों का नाम बताएं पहले और उसकी जर्नी कैसी रही मेडल जीतने तक. So my kids, Girisha and Gitika, they both are. She is in class 5 and she is in class 7. They have started their journey from the basic. The school has started a taekwondo facility in the school. So I started, what is this new thing I came to know. So when I enrolled them in the taekwondo in the basic classes, so they learned about martial arts and new forms of physical techniques. So after that, I have enrolled in S Tigers Academy. School has brought S Tigers Academy in our school. So combining their efforts of their mentors and my kids, they have developed a very good growth in their physical activities and they have secured many medals, inter club, inter house, state level. They have performed very well and I'm very happy with their performance and expecting they are growing and growing with this academy and getting further reaching to Olympic medals. आई वुड मैम टू आंसर अबाउट इस तरह का एक आप लोग का सपोर्ट रहा इस जर्नी में और बच्चों ने जो अब मेडल जीता है तो कितना प्राउड पेरेंट्स आपकी. प्राउड तो हुई और ये मयंक है, मयंक ने अभी ओपन स्टेट में मेडल लाया है. फर्स्टली तो मुझे ताइक्वांडो मीन्स फाइटिंग पता था, लेकिन एस टाइगर में जैसे ज्वाइन हुए तो फूमसे किरोगी वो पता चला और अभी फूमसे में उसने मेडल लाया, तो हमें भी पता नॉलेज मिल गई कि ताइक्वांडो में भी ब्रांचेस है और फाइटिंग के अलावा फूमसे भी होता है. इवन दो फ्री स्टाइल अभी जस्ट रिसेंटली पास्ट 1.5 months बैक मुझे पता चला कि फ्री स्टाइल का भी कोई इवेंट होता event होता है है. एंड जिसमें बच्चों ने मेरे फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया, फर्स्ट टाइम एंड डायरेक्टली टू ओपन स्टेट महाराष्ट्र लेवल. सो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था कि बच्चों ने वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया एंड विद इन 1 month उन्होंने वो टेक्निक सीखा भी. ग्रेट एफर्ट ऑफ किड्स. और सर आप कुछ कहना चाहेंगे जर्नी के बारे में बच्चों की किस तरह से आपका सपोर्ट रहा है. No, actually we have supported a lot. I'm parent of mine, and throughout the journey, right from the district level, right from the state level, we have supported him a lot, and he has improved and he has achieved the medal, and we are very proud that he has got the medal for the school in school. Yes, for me. Just tell me about the time you went to Korea, right, for the cultural experience. Yes. How was it? Like, how was it like representing
was very fun, and I was very nervous in the match before the timing. And while in the training, it was very intense. So I was like, how can I do the match if I'm this tired? But eventually, I gained more strength, and I was able to be was able to do the championship properly. तो कुछ मुझे थोड़ा और बताओ, मैंने सुना वहाँ की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंटेंस थी, ऐसा क्या था उसके बाद? उधर की ट्रेनिंग में बेसिक्स में ज़्यादा फोकस किया था और उसमें और हाई लेवल पे था। और मेरा हाथ भी इस पे इंजर्ड है, तो मुझ पे और भी हार्ड था वो। आपके लिए और भी ज़्यादा difficult। What about, मैंने सुना कि आपको 3-3 बार दिन में ट्रेनिंग कराई जाती है, हाँ, कभी बहुत से कभी तक। सुबह के 5 बजे से 8 बजे तक। दूसरा हम लोग दोपहर को करते हैं 12 बजे से 1 वरना 2 बजे तक। और रात को करते हैं हम लोग 7 से 10 वरना 7 से 9। कुछ 6 months आपने डिस्ट्रिक्ट खेला, फिर आपने स्टेट में आपको गोल्ड आया। यस। तो ऐसे हम मास्टर्स के लिए ट्रेन कर रहे थे। फर्स्ट उसने यहाँ पे इंटर क्लब खेला एंड देन ही गॉट गोल्ड मेडल। ट्रेनिंग अच्छे से चल रही थी एंड देन वी गॉट सिलेक्टेड फॉर स्टेट चैम्पियनशिप। डक्स का पहला फेडरेशन चैम्पियनशिप था जहाँ पे वो स्टेट के लिए सिलेक्ट हुआ। एंड वाइल प्लेइंग स्टेट, जब वो ट्रेनिंग कर रहा था स्टेट चैम्पियनशिप के लिए, सो ही गॉट इंजर्ड, जहाँ पे उसका हैंड इतना इंजर्ड था कि अगर वो कुछ फ्री स्टाइल करते अगर वो फॉल हो जाता, उसके हाथ पे गिरता, तो हमें बोला गया था कि उसका हाथ फ्रैक्चर हो जाएगा। बट वाइल कीपिंग दैट इन माइंड कि उसका हाथ इंजर्ड है, ही kept training. वो स्टेट गया, स्टेट में ही गॉट अ गोल्ड मेडल। नाउ ही इज गोइंग फॉर नेशनल्स एंड इन बिटवीन नेशनल्स हम इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं विद दैट इंजरी। हम इंटरनेशनली जाते हैं, वहाँ पे मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग ये अकेला ट्रेनिंग करता है, जहाँ पे सारे बच्चे फिजिकली फिट है। यहाँ पे ये मेडिसिन ले रहा है, एक हाथ पे पुशअप्स कर रहा है, वन हैंड रनिंग कर रहा है, वन हैंड पुशअप्स कर रहा है, एक हाथ से पंचेस कर रहा है, हैंड स्टैंड कर रहा है, जहाँ पे इसके लिए बहुत हैवी हो जाती है चीज़ें। बिकॉज एक बच्चा 3 बार ट्रेनिंग कर रहा है विद उसका खाना, बिकॉज हम इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, इंटरनेशनली का फूड इसको अडेप्ट करने में टाइम लग रहा है। इसका स्लीप शेड्यूल पूरा चेंज हो गया है, जहाँ पे 8 घंटा सोता है वहाँ पे 3 आवर्स 4 आवर्स उसको स्लीप मिल रहा है। एंड देन इन बिटवीन जब हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, देर आर डेज जहाँ पे वो ट्रेनिंग के बीच में हमारी चैम्पियनशिप्स आ जाती है। तो हम मॉर्निंग 4 घंटा ट्रेनिंग कर रहे हैं एंड देन हम सीधा स्टेडियम जा रहे हैं, जहाँ पे ही नीड्स टू परफॉर्म विद दैट इंजरी, इंडिया के लिए खेलना है उसको। एंड देन अगेन वो सब करने के बाद इन इवनिंग हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। Hi, how are you? Nice. Good, fine. What's your name? Simar. So, hi, I want to know, in the last 6 months, how have you changed? What is the biggest thing that you see in yourself that you have changed after doing that? After taekwondo, I've seen that I got so much power and strength. Feel very strong. Yes. I'm very happy जहाँ पे आप बोल सकते हो कि दिस इज जस्ट बिगिनिंग, जहाँ पे हमारी साउथ कोरिया की ट्रिप जस्ट एंड हुई आप बोल सकते हो, बट आई विल से इट्स अ बिगिनिंग वेयर Akshay has just got the exposure that how international athlete plays at the podium, जहाँ पर more than 35 countries participate कर रहे थे all over world से, you know, उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम था, सेमिनार था, जहाँ पे इवन ऑल दो आई वुड लाइक टू से कि तक्ष को विच इज़ लाइक हमारे इम्पीरियल स्कूल से जो हमने टारगेट रखा था कि हमारा पहला बच्चा यहाँ से इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है गोइंग टू द पोडियम, उसके हाथों में फ्रैक्चर्ड था, लेट मी टेल यू। और बट तो भी काफ़ी डिसीजंस के बाद, पेरेंट्स के कंसर्न, कोचेस, फिजियो, यू नो, ही प्लेड, ही रिप्रेजेंट, मतलब इट वाज नॉट एन इजी टास्क। और ये ऐसे जो माइंड सेट रख के हम गए, ये जो सिनारियो हमारे साथ कंप्लीट लाइक यू नो इवेंट में रहा, 2-3 सिनारियो थे जिसमें से सबसे बड़ा सिनारियो था। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जहाँ पर वो जाने के बाद ही वॉज गेटिंग अप अर्ली मॉर्निंग 5:30 फॉर द कॉम्पिटिशन,
जहां पर ही वॉज ट्रेनिंग विद वर्ल्ड चैंपियन, यू नो, एंड उसके बाद में 9 o'clock ब्रेकफास्ट, उसके बाद 9 से इवेंट कॉम्पिटिशन्स थे हमारे. सो यू कैन इमेजिन, हम लैंड होते हैं, हम जेट लैग होता है, बट वी आर स्टिल ट्रेनिंग, गेटिंग, मतलब हम पहुंच रहे हैं वहां पे, 1 घंटा रिकवरी, वी स्टार्टेड ट्रेनिंग. सेकेंड डे वी स्टार्टेड ट्रेनिंग, थर्ड डे वी हैड द इवेंट, अगेन वी आर डूइंग अर्ली मॉर्निंग ट्रेनिंग. ये जो जर्नी थी बिटवीन, ये चीज के पीछे एक्सेल करना, इट्स नॉट इजी, लेट मी टेल यू, बिकॉज एक एथलीट अपना टाइम स्ट्रक्चर एडजस्ट करता है, अपना फूड एडजस्ट करता है. सो ये सब चीजों के बाद जो मेडल आया जब उसने पोडियम में खेला, इट वाज रियली लाइक यू नो, हमारे इंडिया के लिए ट्राई कलर्स के साथ में हमारे कंपटीशन में अच्छा मेडल्स आया हमें, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट. एंड दूसरी चीज मैं बोलना चाहूंगा कि मेरे एंटायर बीइंग अ इंडिया टीम कोच, ये जो हमारा इवेंट है यहाँ पर, इस टाइम पर हमारे प्रेसिडेंट, जो हमारे इंडिया ताइक्वांडो के नामदेव शिरगांवकर जो प्रेसिडेंट है, आई हैव रिक्वेस्टेड हिम पर्सनली दैट सर यू आर देयर, इंडिया टीम वहां है, मैं चाहता हूं आप ये इवेंट में भी आए, जहां से बच्चे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लेवल, एशियन गेम्स के लेवल पे, यही ऐसा एक इवेंट है जो कोरिया में साल में एक बार होता है, जहां से बच्चे हमारे इंडिया के वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम, एशियन चैंपियनशिप में मेडल कन्वर्ट किया है. सो इस इवेंट को मैं चाहता था प्रेसिडेंट जी पर्सनली आए, देखे कैसा है, एंड ही वाज अ चीफ गेस्ट देयर, एंड ही हैज एंटायरली, थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी, एंड यू नो, उनका पर्सनली एक व्यू था, ही सॉ द एथलीट्स, ही मेट देम पर्सनली, एंड ही वाज वेरी हैप्पी, एंड ही आल्सो प्रॉमिस दैट इंडिया इसको और स्ट्रांगली सपोर्ट करेगा. इस इवेंट में जाने के लिए इंडिया के, एक मैं आपको गुड न्यूज देना चाहूंगा कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से बात हुई है कि इस कॉम्पिटिशन्स को और इंडिया से स्ट्रांगली हेल्प और सपोर्ट मिलेगा. तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए. सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे तक्ष की इस कामयाबी को लेकर, आपके स्कूल की तरफ से ये बेहतरीन इशू को लेकर? First of all, I am very thankful that I am able to share the same space with a kid who has represented the country at a global stage. इससे बड़ी खुशी की बात शायद आज के डेट में मेरे लिए कुछ और नहीं है. आई एम श्योर ये एक पेरेंट के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, कोच के लिए बहुत बड़ा मोमेंट है, हम सब लोगों के लिए स्कूल में जो हम आते हैं उन सब के लिए बहुत बड़ा मोमेंट है. आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम फॉर व्हाट ही हैज़ अचीव्ड. I'm also very happy that he went to a different country and he could interact and meet and learn from people who are competing at a global stage. I hope तक्ष जो भी वहाँ पे सीखा है वो यहाँ पे अपने लाइफ में यूज करें, not only in Very true. taekwondo. I asked him just before this meeting started कि तुमने क्या सीखा है, तो what he told me was discipline is one major thing that he has learned. I hope वो discipline अपने लाइफ में यूज कर पाए. मैं ये भी चाहूँगा कि तक्ष एक इंस्पिरेशन बने बाकी बच्चों के लिए हमारे स्कूल में जो हैं, और नेक्स्ट टाइम जब हम कंटिंजेंट भेजें तो तक्ष के साथ और बहुत सारे बच्चे हमारे स्कूल से जाएं, बाकी स्कूल से भी जाएं, जो देश के लिए कुछ करें. लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट सर. एंड जैसे मैंने आपको एक चीज़ में इसमें ऐड करना चाहूँगा, मेरी एंटायर इंडिया टीम जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, या मैं जब से एथलीट्स को खिला रहा हूँ, एशियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, इससे बड़ा इवेंट इंटरनेशनल में कोई होता नहीं. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट गेम्स, ओलंपिक, एशियन गेम्स, आज एशियन गेम्स जापान में है, या यू विल नॉट बिलीव, पूरे इंडिया में इट विल बी द फर्स्ट हिस्ट्री वेयर शिवम, जो हमारे साथी है अभी फिलहाल, he has been selected and qualified for Asian Games in Japan. He is the first male ever. So looking forward, he is being also a coach. Wow. And ऐसे सपोर्ट और सब, लाइक यू नो, यू कैन से कि ऐसा एक्सपीरियंस जो बच्चों को मिल रहा है ऐसे कोचेस के साथ जो खुद इंडिया टीम के लिए खेल रहे हैं. मैं आपको जो मेजर पार्ट है जो मुझे बताना है कि ओवरऑल एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ माइन बीइंग इंडिया टीम कोच, मैंने एक चीज सीखी, ग्रास रूट स्टूडेंट, अंडर 8, अंडर 12, ये मेजर स्टूडेंट्स. और जब इम्पीरियंस के साथ मेरा इंट्रैक्शन हुआ,
मुखर्जी सर के साथ मेरी बात हो रही थी एंड कॉन्ग्रेचुलेशन सर बीइंग अ डायरेक्टर एंड आप प्रिंसिपल प्लस डायरेक्टर हो चुके हो मुझे पता चला सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट एंड मेरे लिए बहुत अच्छा है सपोर्टिंग और अच्छा सपोर्ट मिलेगा आई थिंक मुझे अब एक ही तरफ से डिसीजन मिल जाएगा मुझे दोनों जगह का राइट I think the management is always very supportive for anything around sports and performing arts. And apart from believing in the core academic excellence तो होना ही है, but I think जो पर्पस के लिए स्कूल में पेरेंट्स बच्चों को भेजते हैं वो है एक कैरेक्टर बिल्ड करना, एक इंडिपेंडेंस बिल्ड करना. So I think through all these opportunities, our kids will grow into better human beings who can So true. take decisions on their own and live life well and happily. So management has always been very, very supportive. Yeah, तो हम सपोर्ट करते रहेंगे आगे भी. So जैसा मैंने बोला कि under 10 because very few schools in Mumbai, let me tell you, I've been interacting since so long. I'm into this industry with like many schools I've gone through for the sports industry में जो मैं देख रहा हूँ बच्चों को कैरेक्टर बिल्ड कर रहे हैं चीजें कर रहे हैं बट इम्पीरियन इज वन ऑफ द स्कूल में आज आपको बताऊं यहाँ से आप इन फ्यूचर 2029 मेरा एम है ताशकेंत एशियन गेम्स के लिए जो आप यूथ होता है यूथ एशियन गेम्स ताशकेंत में 29 में आई प्रॉमिस आई विल गेट अ मेडल फ्रॉम India and from Imperial School. I promise this. And I am very sure कि जब मैं अपने जर्नी में आगे बढ़ रहा हूँ सर you'll not believe under 10 under 12 एक ऐसी कैटेगरी है अगर आपने यहाँ से कैरेक्टर बिल्ड किया एथलीट्स का ये एथलीट्स मेडल क्रिएट करेंगे Absolutely, absolutely. एंड ये चीज जो मुझे स्कूल से मिली आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट एंड आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड सो ये जस्ट जैसे मैंने बताया जस्ट द बिगिनिंग नॉट द एंड ऑफ दिस कोरिया ट्रिप वेयर वी हैव स्टार्टेड अपकमिंग नेशनल टीम नेशनल्स के लिए मैं वेट कर रहा हूँ तक्ष मयंक उसके बाद में गीतिका गिरीशा ये हमारे स्टूडेंट्स जो है आई थिंक दे विल बी द फेज जहां पर अदर एथलीट्स दे विल फॉलो देम और उसके बाद वील ट्राई टू गेट क्वालिफिकेशन फॉर इंडिया टीम आफ्टर नेशनल सो लुकिंग फॉर दैट आई थिंक वी हैव दिस एंटायर ईयर फॉर इट and looking forward that. We're keeping our fingers crossed. Fingers crossed. And we keep focusing on the preparation and all the best to you as a coach. Thank you. Whenever I have spoken to him, जब भी मैंने बात किया है Mr. राजन के साथ, तो he really wants to do something great for our kids. And one thing that we have always discussed कि हम देखना चाहते हैं हमारे बच्चों को इंडियन जर्सी पहने हुए. इससे बड़ी आई थिंक फीलिंग हो नहीं सकती हैं. तो विश यू ऑल द बेस्ट. वी आर इंटरेक्शन हमारी ट्रेनिंग चल रही थी स्टेट क्वालिफिकेशन था जाने के 4 दिन पहले वी वर ट्रेनिंग तक्ष स्कूल में ट्रेनिंग कर रहा था स्कूल टाइम में आफ्टर स्कूल टाइम में वी हैव एक्सीलेंसी सेंटर हियर वहाँ ट्रेनिंग कर रहा था. ओवरऑल एक मोमेंट ऐसा आता है कि जहाँ पर मुझे फोन आता है पेरेंट्स का कि सर डॉक्टर ने बोला है कि फ्रैक्चर है और रिपोर्ट शेयर करते हैं एंड देन हमारे टीम पे खुद के ऑर्थो हैं मैं ऑर्थो को कॉल करता हूँ अपॉइंटमेंट्स लेते हैं हम बात करते हैं एंड फिर फाइनली ऑर्थो एक टर्म पर आते हैं कि यू हैव टू टेक केयर अदरवाइज ही कैन लीड टू सर्जरी अगर एक भी इंजरी होती है. सो ओवरऑल उस डिसीजन के साथ पेरेंट्स से बात करना समझाना कि कितना इंपॉर्टेंट है इवेंट ऑल्दो वी रियली अंडरस्टैंड द सेफ्टी फॉर द किड्स कितना इंपॉर्टेंट है वो दोनों को साथ में रख के एक डिसीजन लेके हमने स्टेट क्वालिफाई किया नेशनल्स के लिए गोल्ड आया तक इट वाज अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी एंड उसके बाद हमने इंटरनेशनल में भी सेम कैरी आउट किया. सो आप तक से ही पूछ सकते हो कि इवन ऑल्दो लेट मी टेल यू ये तो हमारे एज अ कोच अगर मैं इसके ऊपर आपको राय रखूं तो मेरा राय है कि आप इंजरी हमारे लिए गहना है. लेट मी टेल यू स्पोर्ट्स एथलीट्स के लिए इंजरी एक गहना होता है वो कभी भी आपको गिफ्टेड हो जाता है मिल जाता है बट ओवरऑल इसमें अगर हमने स्पोर्ट्स में गिव अप कर दिया देन आई थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम बैक बिकॉज वो माइंडसेट बन जाता है. फिर एथलीट वैसे ही आगे भी साइकोलॉजिकली बिहेव करता है कि इंजरी होगा वो गेम से आउट हो जाएगा रिकवर करना बड़ा डिफिकल्ट होता है कम बैक करना बड़ा डिफिकल्ट होता है. बट आई थिंक बीइंग अ नेशनल टीम कोच मुझे ये सब चीजें पता थी. डेफिनेटली मेरा फोर्स बहुत ज्यादा था पेरेंट्स पे वो पेरेंट्स को भी दिख रहा था बिकॉज आई एम अ पर्सन जो स्ट्रेट है अपर बॉडी इंजरी है फ्रैक्चर्ड है बीइंग
नेशनल स्पोर्ट्स कोरिया में आप देखोगे आपके पास अगर अपर बॉडी पे फ्रैक्चर है, आप अपनी लोअर बॉडी ट्रेन करो, सेम हुआ। एंड आई वाज वहां जाने के बाद मेरा प्रेशर, मेरे ऊपर किसी का प्रेशर आ गया। बीइंग मास्टर ली, वी वर ट्रेनिंग, इज अ नेशनल टीम कोच, वो कोरिया के रह चुके हैं, काफी सारे मेडल्स निकाला है, उनके एथलीट मतलब वर्ल्ड लेवल पे मेडल्स ले रहे हैं। वो इंडिया के साथ हमारे एसोसिएट होके हैज अ फॉरेन कोच काम कर रहा है, तो उनके साथ ही ट्रेन कर रहा था। ही वाज वेरी हार्ड टू हिम, ही वाज लाइक तुझे ट्रेनिंग तो करना पड़ेगा, यू कैन नॉट से। सो रेस्ट तक्ष विल टेल यू हाउ वाज इट एंड कैसा लगा व्हेन ही वाज ट्रेनिंग फर्स्ट डे एंड हाउ वाज हिज फीलिंग। तक्ष It was really tough because I could only use one hand, but I managed to do it somehow, and I was telling myself to do more and more since the how much training I'll do, it will result in good. That's why I was training, and I was encouraging myself to do more and more. It was really tough, But you pulled it through. yes. But you did it, right? Yes, You sir. made it. Yeah. Yeah. और we're very proud of you, Daksh. राजन सर, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। 6 months के अंदर स्टूडेंट्स ने डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला है, स्टेट लेवल जीते हैं, नेशनल्स के लिए क्वालिफाई हुआ है, दक्ष इंटरनेशनल खेल गया है। 6 months में सिर्फ इतना काम हुआ है। What big things are you looking forward to in the future? I like the question. I would like to answer it. This is a fast track which I follow. That's why मैंने बोला ना, मैंने हमारे जो प्रेसिडेंट थे नामदेव शिरगावकर से, ये सब इनका सपोर्ट और ब्लेसिंग्स है जो आज हम ये लेवल पर पहुंच रहे हैं। लेट मी टेल यू सर, मैं आपको बताऊंगा हमारी, आई डोंट वांट मीडिया टू ऐड दिस लाइन बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, एशियन गेम्स के लिए देयर वाज अ team supposed to go to South Korea from JSW, that's the Excellency Center and India's biggest sponsor. They got rejection of the visa for South Korea. But this is with us, the government, the MNA, the Korean government, we didn't able to fail anywhere. Right. It's a big So thing. ये सब चीजों के साथ ये जो फास्ट ट्रैक पे एथलीट्स को बनाना, इट इज ऑल अबाउट एक्सपोजर। जहां पर आप एथलीट्स को, जैसे बोला कि आने वाले इंटरनेशनल में मुझे इंडिया टीम में क्वालिफिकेशन लेना है, सो ये अगर मैं नहीं करता तो इट कुड बी अ वेरी स्लो जर्नी इन इंडिया, जहां पे मैं उसको क्वालिफाई कराते कराते मुझे काफी टाइम लगता है। बट एक माइंडसेट डेवलप करने के बाद व्हेन वी कम बैक, इट इज वेरी इजी फॉर अस, वेयर नाउ पेरेंट्स आर सेइंग वी नीड टू ट्रेन, Yeah. आप हमें 3 बार 4 बार सेम ट्रेनिंग कराओ। Right. So that's what I also want to add one thing in, कि हम स्कूल में we have decided that हम before school early morning भी we gonna start the training. Imagine athlete यहाँ पर आता है, पहले वो स्पोर्ट्स करेगा, फिर वो स्कूल में अपने एजुकेशन प्लस ताइक्वांडो वापस करेगा, इवन उसके बाद भी ताइक्वांडो के सेशन वो भी करेगा। सो ऐसे कोरिया में स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है स्पोर्ट्स की, जहां आप ओलंपियन 18 इयर्स में मेडल पोडियम पे देखते हैं, नीदर क्वालिफिकेशन। मतलब हमारे यहाँ पे जिम्नास्टिक्स अगर दीपा कलमाकर क्वालिफाई होती है ओलंपिक, तो शी इज 36, इट इज, और एक 18 साल का अगर एक यूएस से एथलीट क्वालिफाई करके आता है, देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी, जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। दिस इज द साइकोलॉजिकल फैक्ट। So this is what we are changing. Let me tell you last one line. पाकिस्तान, इंडिया, जो हमारा ये जो पट्टा है, बांग्लादेश, let me tell you, this is the research which based, we just need sports science. That's why we are lacking behind. And now कॉमनवेल्थ ले रहे हैं हम 2030 में, कल ही हैंडओवर हुआ है हमें, ऑफिशियल हैंडओवर, एंड इंडिया एंड एमएनए एंड हमारे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स पूरा ट्राई कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स को हम लोग एक यूथ लेवल से चीजें करें, जो एक इंपीरियल स्कूल में आप देख रहे हो। वेरी फ्यू स्कूल व्हिच डज दिस, यू नो, विद द प्रोसेस दे हेल्प, दे गिव टाइम टू द स्पोर्ट। सो थैंक यू फॉर दैट सर। Yeah. I'm looking forward on this. Can I just add something to what you said? In today's era, it is also very important कि पेरेंट का बाय इन हो। नहीं तो फिर अगर बच्चों को अगर हम मिक्स सिग्नल्स देंगे कि ये करोगे तो ये छूट जाएगी आपसे, मैथ में कम हो जाएगा, फिजिक्स में कम हो जाएगा, तो आई थिंक व्हाट ही डिड आल्सो वाज he oriented the parents. He also showed them the roadmap, and he also kind of explained them कि to reach these milestones आपको इतना एफर्ट तो डालना ही पड़ेगा। हम करना चाहते इतना,
बट उसके लिए एफर्ट अगर हम कम डालेंगे तो वो जगह पे हम पहुंच नहीं पाएंगे. So I think that roadmap and the clarity of the milestones and what it takes to reach those milestones was also very important. I think that as a process was also very important. And आगे चल के भी ये process important रहने वाला है कि parents का support और school का support to help the coaches to kind of prepare something like this is also very, very important. It's very important line, sir, what you said. Yeah. Very important. Yeah. Thank you.